applications for instrumentation amplifier. Again, there are two books, Ramakant Gaikwad and Sergio Franco. Sergio Franco, the one which we are using, and the second one is Ramakant Gaikwad. Just check the spelling of Gaikwad. Probably he writes G-A-Y-A-K. I remember exactly. So the name is very much clear. Ramakant Gaikwad, Sergio Franco. Both the books are very good. To refer this section, instrumentation amplifier. So basically, instrumentation amplifier is nothing but a difference amplifier. The subtractor. Okay. This is kind of difference amplifier having certain characteristic feature. As usual, we find the features. So basically, the first point is this is a difference amplifier or subtractor amplifier. Yes. Okay, and some characteristics are. Basically, very high, ideally it should be infinite, but practically it is having very high CMR, very high. You can write very high common mode rejection ratio. Okay, one of the important feature, as usual, as in any op-amp, very low output impedance. So very low. Again, the feature of an ideal op-amp is its output impedance is 0. So you can't say 0 practically, but very low output impedance. Output impedance. Impedance means resistance. No? R or Z. If it is consisting of C and L, it is Z, only R and resistance. And third feature is accurate and stable gain. Accurate and stable gain. So fluctuations should be minimal. So these are three important characteristics of an instrumentation amplifier. So fundamentally it is nothing but a difference, but it should satisfy these three conditions. Okay. To work as a good instrumentation amplifier. And why this is important to study? Because it has many industrial applications, industrial and commercial applications. Industrial application means many industries require to know the precise value of temperature, pressure, humidity, all kind of data industries require. So industrial applications. So why to study this? Because it has important application. Industrial. For example, measurement of temperature, pressure, humidity, etc. Okay? And so we will discuss the other application through the design of various design of instrumentation amplifier. So in shortcut these are written as IA. So whenever you find somewhere written IA means it is an instrumentation. Okay. So the most popular design is triple
op-amp design. Triple op-amp design is the most popular one, but there are several other designs also. So we will discuss triple op-amp, 3 op-amp combination. I am going to draw the circuit diagram. You can just follow. Or I want some of you to draw that beautiful picture because I am not good in drawing. So let us try to open a triple op-amp diagram. So there are various different designs. We are going to first study the triple op-amp design. Triple op-amp means 3 operational amplifier combining to form a single instrumentation amplifier. So can you search this design on the internet? Triple op-amp design, or in the book of Ramakant Gaikwad also. It's very simple. 2 buffer amplifiers, 2 non-inverting buffer amplifiers, and their outputs are working as the input for the differential. So it's very simple. So I can draw a rough diagram, but probably some of you can draw better than me. So that's why I am stopping here. Then I can draw myself. Form? Mila? Yes. You can see these 2 are buffer amplifiers and this one is the differential. So combination of the 3 is triple. Imagine what I will. These 2 are buffer and this one is difference. Buffer and difference. Right? So let me see Sneha form. तो फिर कोई एक ड्रॉ करेगा उसको कॉपी में करना। तो निशा या नहीं तुम्हें सब एग्जाम्स में दिया सरयू, तो सरयू यू कैन कम टू द बोर्ड एंड राइट एज नीट एज यू कैन। थोड़ा बिगड़ेगा तो उसको अच्छा करके। सो व्हेन वी ड्रॉ वंस, जैसे सरयू ड्रॉ करें पहले एक बार आप सभी लोग कॉपी में ड्रॉ करने की कोशिश करो। यू नोट को जस्ट ट्राई टू ड्रॉ। खास है करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकालें। तो वो सिंपल है इसलिए मैंने अभी के लिए नहीं रखा है। No, this is extra resistor to change for tuning or for trimming. So in general, this is not shown. So yes, in general it is a fixed, but if you want to trim it, if you want to tune
stability of fluctuation, then you need a variable resistance. So both are correct. You can use fixed one as well as the variable. Variable one is more preferred because you can tune according to fluctuation, according to CMRR. You stabilize your circuit. So important is stable gain. इंडस्ट्री में जो ड्राइंग करते हैं वो वेरिएबल इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ दो बफर एम्पलीफायर बनाओ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो सेम फेज में आएगा नॉन इन्वर्टिंग है मतलब सेम से नहीं करेंगे हम ये सेपरेट है दो स्टेज है बफर स्टेज देन डिफरेंस स्टेज तो ये बफर स्टेबिलिटी एंड फ्लक्चुएशन को इम्प्रूव करने के लिए और इवन CMRR के लिए you can use this one and the final output of this buffer stage becomes the input for difference stage इसको ठीक से ड्रॉ करो माइनस प्लस उसकी रेजिस्टेंस Ramakan requirement to the library available है then you can refer that to कहाँ से ये library so probably it is available in library so all of you can go to find this book in the library और तब तक हम जल्दी से डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट ओपन करके देखो किसी जगह सब्ट्रैक्टर है या डिफरेंस हमने कराया था क्लास में सर्किट देखो एंड ट्राई टू रिकॉल कि वो कैसे वर्क करता है It is called as recall op-amp instrumentation amplifier. Differential means any amplification which subtract the two input values given minus voltage divider yes voltage divider है but difference करता है ultimate output क्या होता है difference of the input जबकि differentiator में output क्या होगा d by जो भी differential form है वो आता है तो इसने फॉर्मूला भी लिख दिया डायरेक्टली और V12 नाम किसको दिया है ओके द डिफरेंस बिटवीन द टू V आउट अच्छा उसमें डायरेक्टली ऐसे लिख दिया क्या V12 लिख दिया क्या नहीं हमें वेरियस स्टेजेस दिखाने रहते हैं फॉर्मूला इधर आएगा रिटेन करके हाँ ठीक है फाइनली वही फॉर्मूला मिलेगा हमें पर वो कैसे डिराइव होगा वो हम ट्राई करेंगे ठीक है तो शी हैज़ डन ऑलमोस्ट माई जॉब जितना मुझे एक्सप्लेन करना था उसने ऑलरेडी पिक्चर देख के बना दिया और मुझसे अच्छा ही डायग्राम बनाया इसने ठीक ठाक बनाया है ठीक है सर यू कैन से लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस सर्किट
इम्पॉर्टेंट, इसको रिमेंबर करना इजी है। इस डायग्राम को अगर सबने ड्रॉ कर लिया है तो ध्यान से, यहाँ प्लस ऊपर है, इसमें माइनस नीचे। ऊपर वाला जो बफर का फर्स्ट एम्पलीफायर है A1, प्लस अपवर्ड साइड माइनस डाउनवर्ड साइड। A2 में माइनस अपवर्ड साइड प्लस डाउनवर्ड साइड, मीन्स माइनस नीड टू बी कनेक्टेड विथ माइनस ओनली। सेम टाइप के टर्मिनल का कनेक्शन होना चाहिए। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट फीचर इन द कनेक्शन। करंट के कनेक्शन में ऐसा हम नहीं कर सकते एक इन्वर्टिंग को दूसरे नॉन इन्वर्टिंग से कनेक्ट करें, तो फिर आपको पूरा जो एम है वो फेल हो जाएगा। सो इन्वर्टिंग शुड बी कनेक्टेड विथ इन्वर्टिंग ओनली। पहली नॉन इन्वर्टिंग आर यूज फॉर सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स आर यूज फॉर वोल्टेज सप्लाई। तो इसको एग्जाम में याद रखने के लिए कैसे करना है, आपको सिंपली दो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग का मीनिंग क्या है, इनपुट सप्लाई किस टर्मिनल पे देंगे, नॉन इन्वर्टिंग, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग में पॉजिटिव। तो इनपुट सप्लाई विल बी गिवन टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये दोनों हमारे हो गए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, and these are further connected through an extra resistor known as RG, या इसमें RP जो भी नाम लिखा है, usually preferred to name as RG, सेंट्रल वाला जो रजिस्टर है इसको usually RG नाम देते हैं, बट इसने जहाँ से डायग्राम बनाया है सरियों ने शायद इसमें RP या R रो लिखा है। क्या लिखा है सरियों, RP, हाँ P है वो। तो नाम कुछ भी दे, हमें बस उसका रोल पता होना चाहिए और कुछ नहीं। RP is the variable register. The reason I told you earlier why we are using the variable register, because we have to tune it according to inputs and according to CMRR of these two inputs. यहाँ तक कनेक्शन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। एंड these outputs, RP उस वेरिएबल का नाम P लिखा है जहाँ से इसने सिग्नल ड्रॉप करा है, कहीं उसको RG लिख देते हैं। वो डिपेंड करता है हम क्या नोटेशन यूज करते हैं। अब क्यों ये नाम लिए जाते हैं अभी तो एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो तो ग्राउंड भी नहीं हुआ है। इट इज़ लाइक कॉमन टू बोथ। उसको हम जब करते थे तो RC बोलते थे, बट RC में प्रॉब्लम क्या होता है, तो कई बार हमें कॉमन नोड से कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए उसको नया सिंबल हमने RG या RP कर दिया। इट इज़ कॉमन टू बोथ द बफर एम्पलीफायर्स। तो इन दिस वे यू कैन नेम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ओके। अब इन दोनों बफर एम्पलीफायर्स के जो आउटपुट्स हैं, these outputs through these biasing resistors become the input for the difference amplifier. The output of these two buffer amplifiers through biasing resistors become the input of the difference amplifier. ये समझ में आ रहा है? ओके। और डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम हमने देखा, नीचे वोल्टेज डिवाइडर होता है, ऊपर फीडबैक डिवाइडर। हमने किया था ना डिफरेंस या सबट्रैक्टर, वापस से पेज पलट के देखो SIDM है या कुछ अलग है। जस्ट मेक श्योर कि आपको याद है सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का डायग्राम याद है। ये ऊपर फीडबैक नहीं आया था, until you show this feedback resistor, it is kind of voltage follower. अगर रजिस्टर नहीं लगाया तो वोल्टेज फॉलोअर हो जाएगा, there will be no voltage drop across
इन द फीडबैक वो डायरेक्ट जो वोल्टेज आउटपुट है वही इनपुट को फीडबैक कर देगा। इतना था ना, दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज नोन एज सेकंड स्टेज और डिफरेंस स्टेज। दिस वन इज द फर्स्ट वन इज नोन एज बफर स्टेज और फर्स्ट स्टेज। ओके, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज वैल्यू। छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, हमारा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। शुरू में बताया था स्टार्टिंग में, तो बायसिंग करने के ढेर सारे तरीके हैं। तो EGS21 इज थ्रू रेजिस्टर, उसमें ज़्यादा सर्किट एलिमेंट नहीं लगाना होता, तो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। ठीक है, सो अगेन दिस इज द आउटपुट formula for the output if the difference between the two input voltages are V12 between V1 and V2। ये सब V लिखा है इसमें सरियों में, अगर आपको ये न्यू से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप फिर से इसको V जैसा बना लो। और सरियों न्यू और V में फर्क होता है, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ करोगे। देखो V सिंपली ऐसे स्ट्रेट बनाओ, न्यू को ऐसे बनाओ, तो तुम्हारा जो सिंबल है वो थोड़ा थोड़ा न्यू जैसा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा ऐसा करली कर रही हो ना, तो ये एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इट इज अंडरस्टूड दैट सी हैज मेड एवरीवेयर द V सिंबल इज V, इट इज नॉट V। उसने स्मॉल V यूज किया है, यूजुअली हम कैपिटल यूज करते हैं, बट इट्स अप टू यू, जो भी सिंबल यूज करो करेक्टली बता देना। तो हम इन दोनों के इनपुट आउटपुट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे बफर वन के। खुद से ट्राई करो तो करंट लॉ और वोल्टेज लॉ देख करके, किरचॉफ करंट लॉ से हमने किया था स्टार्टिंग में, याद करो कैसे करते थे। सपोज V2 से करंट आ रही है, इस नोड पर मिल रही है, इस नोड को इसने ऑलरेडी V4 बोल दिया है, इसको V3 बोल दिया है। इन दो नोड्स के बीच में हम, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो इनको एक्स्ट्रा वोल्टेजेस के नेम दे सकते हो, V1, V4 प्राइम एंड V3 प्राइम नाम दे सकते हो। तो ट्राई करो, बताओ मुझे करंट कितना होगा हर एक नोड पर, एंड किरचॉफ करंट लॉ कैसे उसको रिजॉल्व करता है। इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट ना, दिस इज किरचॉफ करंट। तो ट्राई करके बताओ मुझे आपका V4 V3 V1 V2 के टर्म में कितना आएगा। दिस इज योर स्मॉल एक्सरसाइज। अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम शुरू करो। पहले तो हमें ये जान लेना है यहाँ पर वोल्टेज कितना रहेगा, सेकेंड टर्मिनल पे, दोनों पे, इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे वोल्टेज कितने होंगे। नॉन इन्वर्टिंग पर V2 है, तो इन्वर्टिंग पर कितना रहेगा, कोई आइडिया है अपने पास डायरेक्ट। फिर मैं न्यूमेरिकल कैसे दूंगा, तुम लोगों को एग्जाम में सोच रहे थे कि न्यूमेरिकल नहीं कराया, ये तो करवा देते हैं। शुरू में बताया था वर्चुअल शॉर्ट है, वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। इफ दिस इज V2 देन V2 रहेगा, इसको हम V2 लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ को हम V1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये V1 है तो ऑब्वियसली ये भी V1 ही हुआ, ये V2 है तो ये भी V2 हुआ। तो फिर ये डायरेक्ट भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो हमने प्लस बना के दिखाया। तो ये V2 है तो ये भी V2 है, ये V1 है तो ये भी V1 है। तो अपने पास V4 V2 V1 V2 V1 V3 है।
अभी करंट बैलेंस करना है हमें। करो किरचॉफ करंट लॉ नहीं, R1 और R2 फीडबैक लूप ही है। तो इनपुट में करंट है ही नहीं ना, तो बैंक के अंदर कोई करंट जा ही नहीं सकता। जो करंट आएगा वो आउटपुट से ही आएगा। इसी को लोग क्या करते हैं, सर्किट को अगर तुम लोगों को ऐसे देखने में कंफ्यूजन हो रही है, सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इन दिस वे, जैसा हमने क्लास में किया माइनस प्लस। ये मान लो हमारा V2 है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो वैसे भी कर सकते हो। मैं वही दिखाने जा रहा था कि अगर आप लोगों को वैसे कंफ्यूजन हो रही है तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दो और यहाँ पे वो RG वाला लगा दो, वेरिएबल वाला। दिस सर्किट इज सेम एज दिस सर्किट, केवल हमारा ड्रॉ करने का तरीका चेंज किया है। आप यहाँ पे हम जब बना रहे थे क्लास में, यहाँ पे R दिखाते थे, यहाँ दिखाया। मेनली फीडबैक लूप में R है, दोनों का मीनिंग सेम है, इन दोनों सर्किट का मीनिंग सेम है। नहीं, वर्चुअल शॉर्ट है, ग्राउंड कहाँ दिखाया है? ग्राउंड वर्चुअल शॉर्ट है, दूसरे पर कोई सप्लाई नहीं है, तो पहले का सप्लाई है। वर्चुअल शॉर्ट है तो वोल्टेज सेम हो जाता है दोनों टर्मिनल। रेजिस्टेंस नहीं जीरो होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर हमने जीरो किया तो ओपैम्प के अंदर करंट फ्लो कर जाएगा। हमें क्या चाहिए? ओपैम्प के अंदर करंट फ्लो नहीं चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। चलो शुरू करो, ट्राई करो। अभी तो मैंने सारे डायग्राम दोबारा से बना के बता दिए, इसको एनालाइज करो। इस नोड पर अच्छा, पहले यहाँ से हम करें, राइट? ठीक है, तो मान लो इसका जो आउटपुट करंट है, इसका जो आउटपुट करंट है उसी का पार्ट इसमें एंटर कर रहा है ना। तो मान लो इसमें जो एंटर कर रहा है वो IP है, और यहाँ से जो आउटपुट से करंट आ रही है इसको क्या नाम दें हम? I1 नाम दे दें, I1 नाम दे दें, ठीक है। तो I1 जो करंट आएगा वही IP को जाएगा, निकालें। I1 की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। करंट यही होता है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू IR। तो I1 इक्वल टू तो V1 बड़ा है, V1 इनपुट है, तो V1 माइनस V3 अपॉन R1। तो I1 इक्वल टू V1 माइनस V3 अपॉन R1। और क्यों? कहाँ इन्वर्टिंग है? ये सप्लाई तो इन्वर्टिंग पे दिया है ना, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग पे दिया है ना। सप्लाई जिस पर है वो डिसाइड करता है फेज क्या होगा। सप्लाई हमने नॉन इन्वर्टिंग पे दिया है, कुछ भी नेगेटिव साइन नहीं है। I1 विल बी डायरेक्टली रिटन एज दिस वे, and IP will be V1 minus V2 अपॉन RP। देख लेना प्लस माइनस का,
RP या RJ जो भी तुमने लिखा है, यू कैन यूज एनी सिंबल। ये दोनों इक्वल करेंगे हम, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अननोन क्या है हमारे लिए, V3। तो V3 हमें किसके टर्म में मिल जाएगा, V1 और V2 के टर्म में मिल जाएगा। तो इन दोनों को इक्वल करके हम V3 फाइंड करेंगे। तो V3 इक्वल टू, सर यूँ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? स्नेहा तुम बताओ कौन सा स्टेप नहीं क्लियर हुआ, कैसे किया ये समझ में आया? वोल्टेज डिफरेंस फाइंड किया दोनों नोड्स के बीच में, और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिल गया, करंट। करंट इज वोल्टेज अपॉन आर, वोल्ट अपॉन आर, वी अपॉन आर। वी कैसे निकालोगे, जहाँ करंट फ्लो कराना है दोनों नोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा। तो ऊपर वाले में क्या है, V1 माइनस V2, V3 माइनस V1 भी लिख सकते थे। वो डिपेंड करता है कि आप किसको प्लस किसको माइनस रखना चाह रहे हो। हाँ, शायद मुझे V3 माइनस V1 ही कर लेना चाहिए था इसको, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में करंट फ्लो दिखाया था। तो V3 माइनस V1 करना था, उल्टा डायरेक्शन रहता तो V3 माइनस V1। अभी करके बताओ कितना आ रहा है, V3 की वैल्यू कितनी आ रही है, R1 अपॉन RG V3 चाहिए। तो V1 माइनस V2 के टर्म में कुछ नहीं आ रहा है। इन दोनों को इक्वेट करो, RP या RG जो भी है। करंट हमने इस डायरेक्शन में लिए तो इसको V3 माइनस V1 लिखना था, शायद वो मिस्टेक हुआ है मुझसे। कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, अभी इसको फॉलो करने से क्या आ रहा है, V3 माइनस V1। हाँ, V3 माइनस V1 करो, क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड लिखा है। तो V3 माइनस V1 करो, V1 माइनस V2। इसीलिए यूजुअली हम उल्टा यहाँ से दिखाते हैं, इस डायरेक्शन से ऊपर दिखाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी दोबारा से चेक करो, बट वैल्यू यू आर गेटिंग। टू V1 माइनस V2। तो बाकियों को भी कर लेने दो, एक बार चेक करते हैं। R1 अपॉन RG या RP जो भी है, R1 अपॉन RP अभी मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसने RP लिखा है। यहाँ पे आ रहा है 2 V1 माइनस V2। ओके, और सिमिलरली V4 हम फाइंड कर सकते हैं क्या? ये IP जो आ रहा है इस नोड पर, वो इसको I2 देगा, तो IP इक्वल टू I2 बनेगा ना। तो इन दो नोड के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, V4 फाइंड करने के लिए। सिमिलरली तो सिंप्लीफाई करके आया, दो इक्वेशन मैंने लिखे हैं, उन दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रही है नोड्स पर। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, इस नोड पर I1 इक्वल टू IP होगा, जितना इनपुट उतना आउटपुट। तो I1 इक्वल टू IP करोगे तो ये दोनों इक्वल करना पड़ेगा, उसको इक्वल करके सिंप्लीफाई करो, थोड़ी मैथमेटिक्स खुद से करो। R1 ये रखो तो इजी रहेगा ना, कंपेयर करने इजी रहेगा, क्योंकि R2 इज नथिंग बट R1 एंड सिमिलरली R4 इज नथिंग बट R3। तो इसको दो अलग अलग हमने लिखा है, बट मीनिंग वाइज these two resistors are same, these two resistors are same and these two resistors are same. Pair wise they are same. जो डायग्राम का मीनिंग समझ पा रही हो जो तुमने ड्रॉ किया है, वो रजिस्टर सेम है। तो अलग अलग वैल्यू लिखोगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, इसलिए सेम वैल्यू यूज करो।
यहाँ क्या हो जाएगा, V2 माइनस V4 अपॉन R1 इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन RP। तो V1 माइनस V2 अपॉन RP इक्वल टू V2 माइनस V4 अपॉन R1। तो V2 माइनस V4 अपॉन R1। हाँ, तो यहाँ से हमें V4 मिल जाएगा। करो, सिंप्लीफाई करो। फॉर द नोट्स को कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको मैं P नाम दे दूँ क्योंकि RP हम यूज कर रहे हैं। तो नोट P एंड नोट Q। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड P एंड एट नोड Q। हालांकि इसका डेरिवेशन कराया नहीं जाता है बुक्स में, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देते हैं। यू विल बी गेटिंग द सेम फॉर्मूला द लास्ट। तो R1 अपॉन RP ये बाहर रहेगा 2V2 माइनस V1। तो इस बार 2V2 माइनस V1 होगा। ओके, बाकियों को करने दो। R1 अपॉन RP सेम मिल रहा है, केवल यहाँ चेंज आ जा रहा है 2V2 माइनस V1। मुझे पता नहीं निशा ने कितना करेक्टली किया है, बट बाकी सब लोग करके मुझे कंफर्म करो क्योंकि ये मैंने भी नहीं किया है। हम जस्ट फर्स्ट टाइम यहाँ ट्राई कर रहे हैं। करेक्टली फॉलो करो, प्लस माइनस ज्वाइन करो। बस ध्यान रखना करंट की एक ही डायरेक्शन लेके चलना, ऊपर से नीचे। ये मत करना कि ऊपर से नीचे एक में लिया, नीचे से ऊपर दूसरे में। ये तो फिर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे करंट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। दिया तुम्हें ये दोनों एक्सप्रेशन मिले या कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, करो। जब सभी लोग आंसर देने लगे तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आता है ये ऑल ऑफ यू कैन डू। तो लॉजिक सबको समझ में आ रहा है, ये मुझे ट्रस्ट हो जाता है। आरपी हाँ, आईपी तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस फिक्स है, V1 और V2 ही है। तो आईपी तो नहीं बदलेगा हमारा, बदलेंगे खाली I1 और I2। ठीक है, चलो कुछ ध्यान से बोलो तो कर पा रहे हैं। बाकी का आंसर आए तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा एक स्मार्ट होना पड़ता है। सर्किट को समझने के वेरियस तरीके डेवलप करने होते हैं। जैसे यहाँ पे ये लग रहा है ये वोल्टेज फॉलोअर की सर्किट है, बट एक्चुअली इट इज कनेक्टेड थ्रू R। सो नाउ इट इज अ फीडबैक लूप, इट इज नॉट वोल्टेज फॉलोअर। इस R को मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ दिखा सकता था मैं वो वाला डायग्राम। सेम R2 को मैं यहाँ दिखा सकता था। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस सर्किट एंड दिस सर्किट। हमारे आउटपुट को R2 के थ्रू जाना है। अब R2 हम कहाँ लगा रहे हैं ये अपनी मर्जी है, उसको फीडबैक में आना है बस। सो बोथ द सर्किट्स आर सेम। तो बहुत सारे बुक में इस तरीके से भी बनता है। अगर आप अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक देखोगे तो उनमें R2 R1 ऐसे फीडबैक में बनाते हैं, RG को बीच में बनाते हैं। बोथ द सर्किट्स आर सेम। ठीक है,
तो जितने टीचर जितने ऑथर उतने तरीके की नोटेशन, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि इस नोड पे क्या अप्लाई हो रहा है। दैट इज द सिंपल वे टू आइडेंटिफाई। इस पाथ को मैं कितना भी लंबा बना दूं, यहाँ से यहाँ तक कितना भी लंबा बना दूं, अल्टीमेटली दीज टू नोड्स आर सेम, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो दीज टू नोड्स आर शॉर्ट सर्किटेड नोड्स एंड कनेक्टेड थ्रू आर ओनली। तो उसको बनाने का तरीका आप कोई सा भी यूज करो, ये तो सुंदर दिखाने के चक्कर में ऐसे बनाते हैं कि थोड़ा रेक्टेंगुलर रहेगा, साफ साफ दिखेगा। मैं इसको सिंपली ऐसे बना सकता हूँ, बट ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसको पूरा यहाँ से ऐसे मिटा दूँ, डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट करूँ। दिस इज द सेम सर्किट। वो तार कितनी भी लंबी आप ले लो, अगर उसमें रेजिस्टेंस नहीं है ना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट, तो उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाओगे, इसे घुमा करके कनेक्शन दिखाओगे, रेक्टेंगुलर कनेक्शन दिखाओ, ये खाली रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, उनका मीनिंग कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ही मैं इतनी लंबे वायर को यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं है ऐसे दिखाने की, अब डायरेक्टली ऐसे दिखा दो, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो और यहीं से दूसरा निकाल दो। बट वो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तो देखने वाले को, रीडर को बोरिंग लगेगा कि क्या चोरी कर दिया, सब इसमें छोटे छोटे जगह में बना दिया, इसलिए हम इतना घुमा के रेक्टेंगुलर पाथ दिखाते हैं। इतनी बड़ी वायर दिखा रहा है, चलिए उतनी बड़ी वायर है नहीं, तो दोनों लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन वेज है, इनको देख के कभी भी ये मत सोचना कि कुछ नया हो जाए। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मल सर्किट को भी एग्जाम में घुमा फिरा के बना देते हैं, लंबे लंबे वायर दिखा देंगे, पाथ उसका लंबा कर देंगे। आपको देखना है उस पाथ में रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो अलग बात है, बीच में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ नहीं आ रहा है, सिंपली वायर ही इतना लंबा घुमा के लाया, इसका मतलब वो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच का पाथ हटा दो। दैट इज जस्ट फॉर योर कंफ्यूजन। ठीक है, सो नाउ वी आर नोइंग द V3 and V4, and since V3 V4 becomes the input for this difference amplifier, so what will be the output of difference amplifier? Now forget everything from here. अपने पास क्या है, यहाँ V3 है और यहाँ V4 है। These two are the inputs for difference amplifier. फार्मूला बताओ, डिफरेंस एम्पलीफायर में आउटपुट का फार्मूला क्या रहता है? V out इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं V आउट बनाऊँ तो मान लो ये हमारा V आउट, फॉर द सेकेंड स्टेज V आउट इक्वल टू, फार्मूला देखो डिफरेंस एम्पलीफायर का, वापस जाओ जल्दी से एंड फॉलो द सेम रूल। ये सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, RF R5 है, R3 R4 है। क्या आएगा हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर का फॉर्मूला आउटपुट का? ये तो समिंग एम्पलीफायर का है, डिफरेंस एम्पलीफायर में माइनस है ना, दोनों वोल्टेज का माइनस होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल प्लस हो रहे हैं ना, माइनस साइन खाली इन्वर्टिंग दिखा रहा है। डिफरेंशिएटर नहीं, डिफरेंस सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर का आउटपुट क्या होगा? V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, कुछ ऐसा आया होगा। ठीक से करके देखो सारे स्टेप, क्योंकि डिफरेंस एम्पलीफायर जो शायद मैंने एग्जाम समझी है, वेक्टर में इंटरव्यू किसी एग्जाम में मैंने उसको रखा है, और तुम लोगों को भूल गया रहेगा तो हो नहीं पाएगा। Assume that this resistance is different than this one, so RF is different than R3, तो क्या आता है फॉर्मूला? N
It is kind of inverting amplifier, difference amplifier connected with inverting terminal. तो क्या आता है फॉर्मूला? माइनस आर एफ अपॉन आर आई क्या होगा? R3 और V3 माइनस V4. आइडियली ये होना चाहिए ना, तभी तो डिफरेंस एम्पलीफायर बोलोगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हो रहा है. अगर मैं ओवरऑल माइनस लेके इसको प्लस कर दूं, दैट इज काइंड ऑफ समिंग एम्पलीफायर, दैट इज नॉट डिफरेंस एम्पलीफायर, क्योंकि वोल्टेज सम हो रहे हैं. हाँ, तुमने शायद रॉन्ग लिखा था उसको, वो बेवकूफ़ी के चक्कर में एग्जाम में पूरा जीरो हो जाता है ना, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट देखना है. अगर डिफरेंस आ रहा है देन ओनली डिफरेंस एम्पलीफायर. अगर इनके दोनों के बीच में प्लस साइन आया, बाहर कुछ भी रहे, अगर यहाँ पे प्लस साइन आया तो समिंग एडिशन एम्पलीफायर, माइनस साइन आया तो डिफरेंस या सबट्रैक्टर एम्पलीफायर. ओके, तो आउटपुट मैटर्स. उसी से टाइप डिसाइड करते हैं व्हाट काइंड ऑफ एम्पलीफायर यू आर यूजिंग इज डिसाइडेड बाय द आउटपुट ओनली. So now we know the values of V3 and V4. Can we try to substitute here and find the value? Can we try to substitute the values of V3 and V4 from equation numbers 1 and 2? जो भी नाम देना है इसको दे दो. 1 and 2, substituting the values of 1 and 2 in equation number 3. तो R1 अपॉन RP कॉमन हो जाएगा दोनों में, और अंदर क्या हो जाएगा? V3 is 2V1 minus V2 to V1 minus V2. लेकिन हमें क्या चाहिए था? 1 प्लस. हाँ, तो कुछ तो रॉन्ग हो गया है हमारा पहले स्टेप में कैलकुलेशन में. I1 IP और IP I2 यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग हुआ है, क्योंकि when we are substituting the value there, ये हमारा क्या है? नॉन इन्वर्टिंग AB है, नॉन इन्वर्टिंग AB. तो नॉन इन्वर्टिंग के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? नहीं, R3 तो L2 चाहिए अपने को. नहीं, RF और R3 कहते हैं. RF तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है एक्चुअली वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट आ रहा है, तो हमारे ये अप्लाई करने में कुछ रॉन्ग हुआ है. एक माइनस साइन किधर से किधर में कुछ तो एक माइनस साइन का रॉन्ग हुआ है, क्योंकि ये आना चाहिए 1 प्लस. पहले केस में नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट आएगा ना, क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग कॉम्बिनेशन यूज किया है. तो 1 प्लस RF मीन्स RP अपॉन R1. 1 प्लस RF अपॉन RA, तो 1 प्लस R1 अपॉन RP.
क्योंकि आरपी इज काइंड ऑफ इनपुट। ओके, इस सर्किट डायग्राम से ही सारी कंक्लूजन। यहाँ पे आरपी इज काइंड ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस फॉर बोथ दीज एम्पलीफायर्स। तो हमारे जो आउटपुट आ रहे हैं, हाँ, वो रॉन्ग हुआ है। आरपी अगर डायरेक्टली मैं नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट देखूँ तो क्या बनता है हमारा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एफ, ये होता है इंटू वी इन। वी इन मान लो मैं पहले कर देता हूँ, V1 बिकम्स V3। अब इसमें आर एफ कितना है, इसके लिए R1 है और इनपुट कितना है RP, तो 1 प्लस R1 अपॉन RP इसके केस में आना चाहिए और 1 प्लस R1 अपॉन RP इसके केस में आना चाहिए। तो यस, उसको रॉन्ग हुआ है हमसे इस एनालिसिस में। तो एक बार गायकवाड़ को बुक लाई हो, इसका डेरिवेशन मुझे दोनों ही बुक में मिला नहीं, सर्गियो फ्रैंको और गायकवाड़, बट बाकी जो भी मोटी पोर्शन में मिल सकता है। हमारी एनालिसिस में रॉन्ग कैसे होगा? नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट तो डायरेक्टली ऐसे आना चाहिए, 1 प्लस आर एफ कौन आ रहा है, सो वी आर डूइंग सम मिस्टेक समवेयर। सर्किट एलिमेंट्स तो हमारे सर्किट सेम है या सर्किट इन्फॉर्मेशन इसमें दो सर्किट अलग अलग लेके अलग अलग आउटपुट मिला है क्या? इसमें भी डायरेक्टली लिखा है के बीच का रिलेशन, बीच के स्टेप लिखा ही नहीं है। जब तक बीच के स्टेप नहीं दिखाओगे वो अगर ऐसे लगेगा तो उसको मिस्टेक कहाँ होगी। तो डिफरेंस एम्पलीफायर इज करेक्ट। तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है। दिस पार्ट इज ओके, देखो इधर ही कुछ रॉन्ग हुआ है। तो ये जो सप्लाई आ रही है V4, ये सप्लाई आ रही है V3। वापस से सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर वाला पेज ओपन करो तो जो हमने सब्ट्रैक्टर या डिफरेंस एम्पलीफायर वापस से ओपन करो तो उस पेज को है, वोल्टेज डिवाइडर है, RF है, और इसको फाइनल ब्लॉक की तरह करो। दिस इज ऑल ना, साइड से डिफरेंस एम्पलीफायर में भी आता है। डिफरेंस एम्पलीफायर को डायरेक्ट इससे नहीं करते हैं, सारे से बनाने चाहिए। अल्टीमेटली में फाइनली ये मिला ना, और उसमें हमने कंडीशन लगाया था कि अगर आर एफ आर आई हो जाए और R1 R2 सेम हो जाए, ये सिंप्लीफाई हो जाता है डिफरेंस। तो अगर सेम नहीं है, जैसे हमारा आर एफ और आर आई सेम नहीं है, आर एफ और R3 सेम नहीं है, और R1 R i R
शायद ये अभी सॉल्व करना पड़ेगा, अभी मैच होगा। लास्ट में सारे आर सेम करने से हमें इस टाइप से बन रहा था, बट अगर हम ज़्यादा जनरल केस तो इसको घर में एक बार और ट्राई करो, सब लोग आइडेंटिफाई करो कि हमसे मिस्टेक आज कहाँ हो रही है। So ultimately this formula is correct, whatever Saryu has written, that formula is correct. 1 plus something should be the answer. V2 minus V1 या V1 minus V2, V1 minus V2 बोलोगे क्योंकि हमने इसको V1 बोला है, तो V12 is V1 minus V2। इसका डेरिवेशन तुम लोग फाइंड करो किसी बुक में अगर मिल रहा है, और सारे स्टेप्स दोबारा से चेक करो कि हमसे कौन से वाले स्टेप में क्या होगा। शायद फाइनल स्टेप में ही कुछ डिफरेंस एम्पलीफायर की जो फाइनल वैल्यू है, क्योंकि ये अगर हमारा RF है और ये दोनों इनपुट हैं, तो RF अपॉन RI पहला होता है इंटू V3 इन्वर्टिंग है माइनस V आउट। वो फॉर्मूला दोबारा से बोलो नहीं सर, तो पहला जो स्टेप आता है माइनस RF अपॉन RI आता है क्या, इंटू V1, तो V1 यहाँ पे क्या है V3 और RI क्या है R3 है, RF तो सेम है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है प्लस M R2 R1 प्लस R2 और इसके साथ कुछ 1 प्लस RF RI इंटू V2। तो अभी हमें मैच करने दो कि R2 हमारा कितना है, R2 ये होगा या ये R1 लिखा है हमने, R2 इसको लिखा है, देखो तो ये सेकेंड को R2 बोला, तो R2 इज नथिंग बट RF, ये हुआ RF अपॉन R1 इज R3। अकॉर्डिंग टू दिस वन इज RF, this one is RF, this is R3। लिखा है V3 के साथ, क्योंकि हमने R5 और RF सेम लिया है, R5 इज RF। सर यही था ना डायग्राम में, देखो बाकी लोग भी देखो, ये और ये रजिस्टर सेम है क्या, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है सेम है, तो हम उसको RF लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या हो गया R3 आ गया, RF की जगह R3 आ गया, तो अगेन और V3 की जगह V4 हो गया ना, V2 क्या है हमारा V4 है। अब इसमें हम V3 और V4 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो, और इसको सिंप्लीफाई करें, कुछ कॉमन सेंस निकलता दिख रहा है क्या, नहीं अभी तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। तो V3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इसमें, और V4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, हमें पता लग जाएगा कि हमारा रॉन्ग कहाँ पर हुआ है, V3 V4 में रॉन्ग हुआ है या V आउट में, वो हमें पता लग जाएगा। अगर V3 V4 यहाँ रखने से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, तब तो समझो हमारा V3 V4 करेक्ट था, हमारा V आउट रॉन्ग था। तो एक बार इसको ट्राई करके देखो जल्दी से, तो V3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, V4 यहाँ, इसीलिए अच्छा किया था कि मैंने उसमें जनरल डेरिवेशन कराया। जनरल केस डेरिवेशन का मतलब ये है कि यू कैन आइडेंटिफाई वेयर इज द एरर। R3 प्लस RF, देखो R2 और RF सेम है क्या, डिफरेंट
लग जाएगा कि एरर कौन से वाले स्टेप में हुई है। समिंग एम्पलीफायर और डिफरेंस एम्पलीफायर दोबारा रिवाइज करके रखेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने किसी एग्जाम में तो रखा है, चाहे मिडटर्म या एग्जाम में आ रहा है। ये दोनों ही एम्पलीफायर हैं, समिंग और डिफरेंस, एडर और सेपरेटर। ये आपका फॉर्मूला नहीं लिखा है तो इसलिए निशान क्यों लिखा है? नहीं, वो तो अप्रॉक्सीमेशन है ना, लेकिन ऑल द आंसर सेम, सभी आर सेम करोगे तो वही मिल जाएगा। इसमें आर एफ इक्वल टू आर थ्री अगर कर दोगे तो क्या मिलेगा? पहला माइनस और दूसरा आर थ्री अपॉन टू, टू अपॉन आर थ्री, टू से टू कैंसिल, आर थ्री से आर थ्री कैंसिल, तो वी थ्री माइनस वी फोर मिल जाएगा। सारे आर सेम करके ही ना तो मिल जाएगा जो फाइनल फार्मूला देख रहे हैं। उसको भूल जाओ, कॉपी में जो मैंने डेरिवेशन कराया था उसमें जाओ, सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का डेरिवेशन। पहले केस में क्या हुआ, V3 की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो R1 अपॉन RP 2V1 माइनस V2, ये मिला हमें R1 अपॉन RP 2V1 माइनस V2 पहले लाइन में। और सेकेंड लाइन में क्या मिला हमें? V4 की जगह R1 अपॉन RP, ये तो कॉमन होता दिख रहा है, R1 अपॉन RP कॉमन होता दिख रहा है, 2V2 माइनस V1, 2V2 माइनस V1। तो R1 अपॉन RP कॉमन निकालो, और क्या कॉमन मिल रहा है? और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? R3 प्लस RF अपॉन R3 प्लस RF कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई अगर हम करें तो R3 प्लस RF अपॉन R3, तो R3 प्लस RF कैंसिल हो रहे हैं, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन रहा है? सेकेंड स्टेज वाला RF अपॉन R3 V4, एंड V4 इज नथिंग बट R1 अपॉन RP 2V2 माइनस V1। ओके, तो ये पूरी लाइन लिखी। फाइनल आंसर में चेंज नहीं आ रहा कुछ? एंड R1 अपॉन R3 दोनों में कॉमन मिल गया, RF अपॉन R3। हाँ, तो
कि हमारा V1 और मतलब V3 एंड V4 में ही रॉन्ग हुआ है। हाँ तो नहीं, वो हम डायरेक्टली लिख सकते थे, बट मैंने ट्राई किया किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके। डायरेक्ट मैंने सुपरपोजिशन नहीं लिखा क्योंकि दैट इज द फंडामेंटल वे। तुम्हारा कहना है कि V3 जो आएगा वो गेन लेकर के आएगा V1 का, तो वो पार्ट हमें लिखना चाहिए था क्या, V3 और V1 के ठीक है, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो हमें दोनों ही कॉमन मिल गए। फर्क इतना है कि इसको देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, इनको पूरा कॉमन निकाल लो बाहर। क्या मिला हमें, IF R1 अपॉन R3 R3 कॉमन हुआ 2V2 माइनस V1 माइनस 2V1 प्लस V2। ये माइनस साइन है ओवरऑल, तो माइनस साइन गया अंदर, माइनस 2V1 प्लस V2 ना। तो क्या मिला यहाँ से हमें, ये कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या मिला 3V2 माइनस 3V, नहीं रॉन्ग हुआ है क्योंकि 3 कॉमन आ गया तो V2 माइनस V1 नहीं आ रहा है। तो शायद इसको घर में चेक करेंगे, हमसे मिस्टेक कहाँ हुआ है, V3 V4 फाइंड करने वाले एक्सप्रेशन में शायद वहाँ मेन फैक्टर मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो इसको हमें घर में चेक करना पड़ेगा। एक बार इसको एज होमवर्क सब लोग लेके जाओ, 1-2 बुक्स देखो, अगर किसी बुक में डेरिवेशन रमाकांत गायकवाड़ में अगर डेरिवेशन मिल रही है तो एक बार इसका डेरिवेशन देखो। हमने डायरेक्ट जो मेथड अप्लाई किया शायद इसमें कुछ फॉल्ट हुआ है हमसे। नहीं, अगर डायरेक्ट ऐसे लिखते हो तो आ सकता है। मेरा सजेशन है कि ऐसे क्यों नहीं आया, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना वो किरचॉफ करंट लॉ से डिराइव करते हैं। हाँ हाँ, ये माइनस VP कहाँ है, अच्छा ये इनपुट इस टर्मिनल के आई रहता है, आई है ये भी आया ओके, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस जीरो कौन आया, हाँ डायरेक्शन तो वही है, शायद हमने करंट की डायरेक्शन रॉन्ग ली है क्या, इस केस तो वही है जो हम KCL में अप्लाई कर रहे हैं वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्योंकि करंट जो आएगा आउटपुट से आएगा, इनपुट से करंट है नहीं। अच्छा ओके ओके ठीक है, वो वाला मेथड अप्लाई करने के लिए हमें आरपी को इनपुट दिखाना पड़ता, हमें यहाँ आरपी लगाना था, शायद इसलिए कुछ कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, नाउ यू आर स्मार्ट इनफ, बहुत सारी एक्सरसाइज कर चुके हो, घर में एक बार इसको और ट्राई करना। डायरेक्ट आउटपुट का फार्मूला अप्लाई करके देखो उससे हो रहा है क्या, कि फॉर्मूले में 1 + 2R1 आया है, इसका मतलब ये 2 बार आना चाहिए सेम, तभी जाके ये 1 + 2 बनेगा। तो ये एक एक्सरसाइज में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
खाली R1 अपॉन R3 रहता ना, RP रहता, मतलब R3 अपॉन RP रहता तो भी चीज़ें आसान थी। ये 2 हुआ है, 2 का मतलब 2 फैक्टर कॉमन आए हैं और वहाँ से ऐड होकर के 2 बना है। इसको घर में एक बार ट्राई करो, मैं भी देखता हूँ कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। मैं इसका बैठ के एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे लगा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, मैं अपने से डायग्राम बनाऊंगा दोबारा और फिर देखूंगा कि ये वाले डायग्राम में और मेरे वाले डायग्राम में सिमिलरिटी क्या है और कहाँ पे हमने समझने में मिस्टेक किया। करेंट की डायरेक्शन में कर रहा हूँ, नहीं ये मुझे याद ही है। इस पार्ट में कहीं कुछ रॉन्ग हुआ है मुझसे। V1 और V3 के बीच का रिलेशन लिखने में से कुछ रॉन्ग हुआ है। तो वी आर क्लोज फॉर इन्वर्टिंग। अगर सारे टर्मिनल इन्वर्टिंग होते तो हमारा आंसर आ रहा था, बट पहले जो टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग है इसलिए हमें डिफर हो रहा है आंसर। तो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन कि कहाँ डिफर हो रहा है। सो दिस वन सर्किट डायग्राम इज फॉर ट्रिपल ओपन एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंटेशन। बट आज के समय में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को 2 ओपन यूज करते हैं, तो डुअल ओपन भी यूज होता है। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन यू शुड नोट डाउन डुअल ओपन एम्पलीफायर। इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू शुड नोट डाउन डुअल ओपन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो इसमें क्या करते हैं, स्टेज 1 में एक ओपन, स्टेज 2 में दूसरा ओपन, इसका आउटपुट स्टेज 2 बन जाता है। तो इसमें चेंजेस क्या होगा ये हमें सर्जियो फ्रैंको की बुक में मिलेगा। तो मैं वो डायग्राम बना देगा। अरे 10 बजने को आ गया। अगला लेक्चर किसका है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा मेरा ही है क्या? मतलब सबके अलग अलग है। तो जस्ट मुझे पेज नंबर बता देते हैं उसका। सर्जियो फ्रैंको की बुक में 89 नंबर 89 नंबर पेजेस पे सर्जियो फ्रैंको की चैप्टर 2 में 88, 89, 90 3 पेज देखना है। तो डुअल ओपन का डायग्राम इसमें बना है। डुअल ओपन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का डायग्राम बना है। इट इज सिंपलर वन दैट द ट्रिपल ओपन। खाली 2 ओपन लगे हैं इसमें। इट इज मच सिंपलर। तो सर्जियो फ्रैंको है सबके पास। मैंने लेक्चर 1 में ही बताया था इसको करना। नहीं, पीडीएफ भेजना हमें अलाउ नहीं है क्योंकि कॉपीराइटेड होता है। तो यू कैन सर्च फॉर दिस PDF वर्जन और सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक। तो बुक का नाम मैं बता देता हूँ दोबारा। आर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सब कुछ होगा और वो मोटी बुक है, उसमें ढूंढने में मेहनत जा रहा है। डुअल ओपन ऐसा भी है, लेकिन इसको समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये दोनों अपोजिट तरीके से दिख रहा है। तो मैंने जो फ्रैंको की बुक का डायग्राम बताया है, कोई चाहो तो फोटो ले लो, इसको बाद में तुम लोग ड्रॉ कर लेना। Because this one is the simpler one. Triple open